Hmm. Okay, so in the previous class, we have discussed substitution cipher. So I think you have understood that cipher. If you have any doubt, you can tell me. Shift cipher. Yes, yes, yes. Okay, sorry. Shift cipher. We have discussed shift cipher. So if you have any doubt regarding shift cipher, then you can ask. Otherwise, I will continue with next cipher. No. Hmm. Shift cipher that we have seen. Okay, let me repeat again something so that you will be able to recall. So in shift cipher, what I have told, huh? Yes, बोलो. Hmm. 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 Okay. So let me repeat. In case of shift cipher, what we are doing actually, we had taken our plain text space is P, C is the cipher text space, and K is the key space, and all are set Z26. So what is Z26? I have already explained you. Z26 is the set of all residues. Z26 is set of all residues under mod 26. Okay. So what are those set of residue? You can tell. Z will be equal to, if you recall that, it is 0, 1, 2, and so on, 25. So now actually we are doing cryptography on this set. We are also taking this set as key space, this set as a cipher space, and this set as also plain text space. So that means our plain text will be number from 0 to 25. Now how we are relating this with language? Actually your English, why we have taken this 26? Because in English we have 26 alphabet. Okay, 26 letters are there. So suppose that you want to use any other kind of language, so we can just modify this set. Z26 की जगह पे let's say some languages X is there, some language X is there, and it has, let's say, 36 letters. So you can use Z36 set. So all values will be 0 to 35, and आप क्या करेंगे? You will assign each letter a particular code. So how code you will assign? First letter will be given code 0, second letter will be given code 1, and so on. Okay. So you can do arithmetic on this set. So in order to do cryptography, actually we require an algebraic structure, and minimum algebraic structure required for cryptography is group. We will talk about group later. Okay, so for the time being, you just remember that Z26 is an algebraic structure that forms a group under operation modulo 26, modulo addition 26. Okay, now what we are doing, how we are using this arithmetic structure for cryptography? What we are doing, we are actually have transformed every letter in a number. Okay, and when we will decrypt, we will just use a reverse transformation. That means number to letter after the decryption. How we are doing encryption? We are using modulo addition operation for encryption. Okay, now this set is a group actually. So whenever you will use modulo 26 operation, you will not get any number, whatever number you add, you will not get any number beyond this set. Why it is happening? Because you are using modulus as the operator.
ओके, सो मॉडुलस के केस में सिंस मॉड 26 है, सो इन केस ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर वी कंसिडर द रिमाइंडर एंड यू नो दैट रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिविजर। तो 26 से ज़्यादा कभी रिमाइंडर हो ही नहीं सकता है। सो ओबियसली वट एवर नंबर्स यू वर्क अपॉन, कितने भी नंबर्स के साथ एडिशन करिए, ऑलवेज यू विल गेट नंबर फ्रॉम दिस सेट बिटवीन 0 to 25। सिमिलरली आप अब एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एडिशन का इन्वर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। ओके, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। ओके, सो हाउ वी आर डूइंग इनक्रिप्शन, एक्स इज योर लेटर जिसे आपको इनक्रिप्ट करना है, उसमें आपने की, दिस इज के इज योर की, सो यू ऐड बोथ ऑफ देम। सो आपने लेटर एक्स और की को ऐड कर दिया एंड नाउ यू नो दैट this number is also between 0 to 26, this number is also between 0 to 26, so ultimately the outcome we can call it, let's say y, जो सिफर टेक्स्ट है, so y will also be between this, from this set। okay, so आपका जो सिफर टेक्स्ट है that is also from this set Z26। okay, so this is how you will do encryption। so your y is the encryption of letter x। okay, you can call it, you can say that x has been encrypted in a letter y। now at the receiving end you need to do decryption, so you also need to define a decryption function। okay, now in order to do decryption we need a key, the same key जो कि encryption में इस्तेमाल हुई है। so आप देख सकते हैं according to that definition we are using the same key, just operation यहाँ change हो गया है, यहाँ हम प्लस कर रहे थे, यहाँ माइनस कर रहे हैं अंडर mod 26। so now what we are doing to decrypt y, so y को डिक्रिप्ट करके we should get x। so how we are decrypting y minus k, that means की को सब्ट्रैक्ट कर दिया and you get, this is actually representing x, so you will get x back and this is how decryption will be possible। so at the encryption side the Alice will use this algorithm and the decryption side Bob will use this algorithm and both are sharing the same key k। so you can see that this is a symmetric key encryption system। so this is an example of symmetric key encryption system। ठीक है, I am right, just like encryption system। got it? so this was the story over this set। so this is how we are doing shift cipher। now you should remember that shift cipher is not very strong enough, it can be broken easily। we have already discussed how it can be broken। you can use simple brute force attack to break it and brute force attack will be able to break this cipher within seconds using computer। however if you do manually it will take some time, but by computation you can do it easily। सिर्फ क्या करना है, you need to try almost on average half of the key space। so exhaustive key search attack is easily will be able to break it, so that's why this method cannot be used for encryption purpose। okay, so it is a very poor method, it doesn't have any security। now since we are looking for a secure cipher, so now what we have understood from here, what are the outcome or understanding of from this cipher, आपने क्या सीखा यहाँ पे, what is the problem with this cipher जो यूजुअली आपको सीधे सीधे दिख रही होगी। नहीं, तो दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी, सेंडर एंड रिसीवर विल हैव सेम की, so they will use both the key। yes, we can decrypt easily because key space is very small, only 26 keys are there। so कोई भी, even manually you can also try it। computation, if you use computer it will become very easy। आप एक सिंपल प्रोग्राम लिख सकते हैं इसके लिए, you can write a program easily to do this kind of decryption। yes, no, you cannot use any key, every encryption system has its own specification, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। यू कैन नॉट यूज एनी अदर की स्पेस आपका यही लिया गया है इसमें। हाउएवर यू कैन प्रपोज न्यू वन। हाँ, आपको इस सेट के केस में, इस फॉर दिस इनक्रिप्शन सिस्टम
यू कैन चूज की फ्रॉम दिस सेट ओनली. आप देख रहे हैं ना इस इंक्रिप्शन सिस्टम में साफ कहा गया है कि C इज द Z26, दैट मीन्स एंड K इज ऑल्सो Z26. सो ऑल लेटर्स, दैट मीन्स ऑल लेटर्स, दैट मीन्स सिफर टेक्स्ट जो जनरेट होगा इनमें से कोई एक होगा, प्लेन टेक्स्ट भी जनरेट होगा इनमें से कोई एक होगा, एंड K जनरेट होगा इनमें से कोई एक होगा. अच्छा, नाउ you can remember, you can see one thing here, you can notice one thing here. This method encrypt letters one by one. Your key is fixed, but is suppose you have a long text, then you have to encrypt all the letters using same key. Okay, ये long text को आपको encrypt करना हो तो this was the method that specification is given for encrypting a single letter. सो जब आप जिस तरीके से आप सिंगल लेटर को इनक्रिप्ट कर रहे हैं बाकी अदर्स को भी आप कर सकते हैं. सो लेटर बाय लेटर यू कैन इनक्रिप्ट, बट योर की इज फिक्स, यू आर नॉट चेंजिंग योर की. नाउ लेट्स कम ऑन ए सिफर दैट इज मोर बेटर देन दिस वन. ओके, सो पिछले जो लेसन हमारा मिला पिछले मेथड में वो था हमें की स्पेस सफिशिएंटली लार्ज रखना है. सो हु एवर डेवलप्ड स्विफ्ट सिफर वाज ब्रोकन इजीली. So the understanding from that result was that we should not use small key space. So now whoever came with this the next cipher that we call it substitution cipher, he or she, I don't know who was that author, so he or she just created a more large key space. Now, so let's see how the substitution cipher is defined or how substitution cipher works. So first we will need to see what are the plain text space, cipher text space and key space. So again your plain text space, cipher text space and key space are from Z26. ठीक है. So these sets are actually not this one, these are defined on Z26. Okay, now how we are choosing K? We are choosing K now differently. So what we are choosing, previous method mein what we are doing, we were just only choosing one value of K. Now we will choose a complete permutation. We will choose a permutation. How we will choose a permutation? What is do you know permutation? Do you know permutation? I think you may have studied the permutation in discrete mathematics. This kind of stuffs. 1 2 3 4. Let's say 1 को आपने, let's say you are replacing by 7, 2 is being replaced by let's say 3, 3 is being replaced by let's say 8 or something, 4 is being replaced by let's say 9. So this kind of mapping or transformation is called permutation. आपको ठीक है, this is called a permutation. Generally हम इसको पाई let's say पाई I से represent कर रहे हैं. This is one permutation. So now what we are going to do, we are going to use a permutation for as a key actually. Okay, so how we will do encryption? So in case of encryption we will actually, so suppose X is your X actually is your message. So obviously your message will be of 26 letters minimum, or if your message is large enough, what we will do, we will break that message into chunks of 26 letters. Okay, or you can also encrypt the message by one letter as well, there is no issue. Okay, now let me tell you the key if next slice consists of. So what you will do, now you will choose a permutation. So let's say this is one permutation. Now here for the just making things separate, or ciphertext or plain text में कोई confusion ना हो, to avoid confusion between ciphertext and plain text is being replaced being represented by small letters, and ciphertext is being represented by capital letters. Okay, so now here you can see one permutation is given. This is one permutation. Now this is represented in tabular form. आप
जो मैंने अभी आपको जो फॉर्मेट बताई थी आप इसमें भी लिख सकते हैं इसको विदाउट एनी यूजिंग partitioning. So now what permutation I am taking, I am considering this permutation where whenever I encounter an A into the message, that means plain text, I will replace that message during the encryption procedure by letter X. Okay, so whenever I want to encrypt, so this is one key that we have selected K1. मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसी तरीके से आपको एक की चूज करना है. Okay, understanding the key is very important in order to understand this cipher. 1 minute. Okay, so I have selected one permutation, and this permutation says that A will be replaced by X, B in the plain text will be replaced by capital N, C will be replaced by Y, D will be replaced by A, E will be replaced by H, F will be replaced by P and so on. ठीक है, so now देख सकते हैं आपको, since when you are doing encryption you may encounter any one of the 26 letters. So we have defined a mapping कि किस लेटर को किस लेटर से रिप्लेस करना है, एंड दिस रिप्लेसमेंट इज यूनिक. ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि एक जगह पर ए मिलेगा तो हम एक्स से रिप्लेस करेंगे और कहीं और दूसरी जगह ए मिलेगा ए तो हम वाई से रिप्लेस कर देंगे. देयर शुड बी यूनिक थिंग. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक दो ए और बी के ए और डी आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द सेम लेटर. आप देखेंगे यहाँ भी एक सारे लेटर्स नीचे की रो में एक ही बार रिपीट हुए हैं. नो लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस. Okay, so this way we will choose a permutation. So this is one permutation that you can take as key. So this let's say I have selected this as a key, so I will make this permutation as a secret with me, and also this secret will be given to the receiver. And now how I will do encryption. So whatever I want to do decryption, I will use this table as the key. This is a kind of lookup table. So suppose now I want to encrypt some message. Let's say let me take drone. Let's say we have a letter drone or a text drone. This is your plain text and we want to encrypt this one. Okay, so let me write this one also small. Okay, so as per this convention we will write ciphertext in capital. So now you know that we want to encrypt D. So you can go into this table and look up for D, and you know that this table is saying that replace D with A. So now we will replace D with A, then R. So R, that means I need to replace it with C, and O should be replaced with, ऊपर देखना है मुझे, O should be replaced with F, and N this is S. N के corresponding S you need to use S, and E के corresponding H. So now this was my plain text, this is my key that I have selected, and this is secret between sender and receiver, and this is the ciphertext. So what is the encryption mechanism? Encryption mechanism is just that, follow this permutation for every letter. Follow this, use this permutation for every letter and do this kind of stuff. So this is the same thing that is written here in mathematically. So encryption के लिए what we are saying, encryption के लिए if you want to encrypt X, apply permutation pi over X, and that output will be your corresponding ciphertext for X. है ना. And how we are decrypting? So in case of decryption, what we are doing, we are using inverse permutation over Y, and Y is our ciphertext and we want to recover corresponding plain text. So what we will use now, जैसे हमने encryption में permutation use किया था pi, that means your key, here we are using inverse permutation. और inverse permutation किसका? Key का. So you know that if you have studied permutation, every permutation have its inverse. So obviously you will have inverse for whatever key you chooses. And जब आप permutation पर inverse permutation लगा देंगे वापस से, तो you will recover the same thing. क्योंकि आप अगर permutation को दो बार compose कर देते हैं, you will get the original output. ठीक है.
सो नाउ हाउ यू विल डू डिक्रिप्शन. डिक्रिप्शन के लिए आप ये टेबल इस्तेमाल करेंगे ए बी सी डी. दिस इज योर इनवर्स परमुटेशन. सो ये परमुटेशन लेट्स रिप्रेजेंट दिस परमुटेशन वाज पाई 1. तो ये इसका इनवर्स परमुटेशन होगा लेट्स से पाई 1 इनवर्स. एंड इनवर्स परमुटेशन, किसी भी परमुटेशन का इनवर्स परमुटेशन कैसे निकालेंगे. व्हाट यू नीड टू जस्ट डू, ये जो है ना, इनको जो अभी नीचे वैल्यूज हैं इनको ऊपर कर दो और फिर ऊपर वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग पूरे चीज़ को सॉर्ट कर दो. ठीक है. दैट मीन्स ये जो नीचे वाले लेटर्स हैं पहले इनको ऊपर रख दो और ये इनकी पोजीशन करस्पॉन्डिंग बनी रहनी. करस्पॉन्डिंग पोजीशन यू शुड नॉट डिस्टर्ब, you cannot disturb. Just what, and then what you just need to do, just sort those numbers, so you will get the inverse permutation of a permutation. Okay, this is the way to find the inverse permutation. So decryption side पर आपको क्या करना है, ये k से ये k inverse निकाल लेना and this will be used as the key at the receiving end. Okay, and now अब आपको जैसे वापस decryption करना है. So let me again let's say suppose the receiver received this cipher text. What was that? A, let me write it, A C F S H. Okay, now I have this permutation as the inverse of the key. ठीक है. तो एक्चुअली आई एम यूजिंग द की इट्सल्फ बिकॉज आप ये नहीं कहेंगे कि हम दूसरी की इस्तेमाल कर रहे हैं रिसीविंग साइड पर. वी आर जस्ट डिराइविंग थिंग फ्रॉम द की इटसेल्फ. सो इफ यू डू नॉट नो द और की you will not be able to do inverse of that. Okay, so now let's see. A के corresponding you have D, so मैं small में लिख रहा हूँ D. C corresponding to C we have R, then F corresponding to F is O, S corresponding to S is N, H corresponding to H is E drawn. So we have recovered the original plain text. So ये रिकवरी के लिए आपको क्या जरूरी है, ये टेबल, और ये टेबल कब निकलेगी, जब आपके पास की होगी. ओके, दिस वाज योर सिफर टेक्स्ट. Got it? So this is how you are doing encryption and decryption. Now let's talk about that whether this encryption system is secure against brute force attack or not. Now let's see. So in order to make your encryption system secure against brute force attack, what you need to do? You need to make your key space large enough. So now let's see how much or how many keys you can have in this cipher. कितनी की हम maximum बना सकते हैं. What that means, what is the size of the key space. So now you know that this is a permutation. 26 letter से आपको permutation बनाना है. So how many permutations you can create? Suppose I have given 26 letters distinct objects to you, and how many permutation you can create using those objects? जल्दी बताइए, आप लोगों ने permutation पढ़ा है recently. Good, 26 factorial. Okay, so now how many key you have with you? 26 factorial. So 26 factorial is something 4 into 10 to the power I guess 32. So it is a very very large number. एंड अगर आप इसे नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट दैट मीन्स इफ नाउ अगर आप अज्यूम कर लीजिए कि आपको एक की ट्राई करने में 1 सेकेंड लगता है, सो यू विल रिक्वायर 4 into 10 to the power 32 सेकेंड्स पूरा की स्पेस ट्राई करने में. ओके, एंड दिस नंबर विल बी कन्वर्टेड इनटू, अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम इन ईयर्स, मैनी ईयर्स, thousands of years. So that means now this method is secure against brute force attack. This method is secure against brute force attack. Okay, now do you think this method is secure? Now let me give you one comment regarding this cipher. I have studied somewhere that this cipher was used
hundreds of years, around 100 years. And in classical cryptography era, actually, not in modern cryptography era, we do not use this cipher nowadays. ओके और बहुत पहले भी 1960 70 से भी पहले यूज़ नहीं करते थे, उससे पहले यूज़ करते होंगे. सो हंड्रेड्स अराउंड 100 ईयर्स तक ये सिफर यूज हुआ. So people used to believe that this cipher is secure. But let me tell you, this cipher is also not secure. It is it can be broken very easily. We will see one attack, simple attack, that is actually a statistical attack, and it uses the property that every language text have a probability distribution for each of its letters. So हर लैंग्वेज में उनके जो लेटर्स हैं उनका एक फिक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो आप उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए यू कैन ब्रेक दिस सिफर. आपको की निकालने की ज़रूरत नहीं है. ओके सो थोड़ा सा आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, क्रिप्ट एनालिसिस करना पड़ेगा. यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस. सो क्रिप्ट एनालिसिस इज अ वे, और क्रिप्ट एनालिसिस इज एक्चुअली a science of breaking ciphers using mathematical and statistical properties available within the cipher. सिफर जो है आपकी, उसमें मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज और पैटर्न्स जो अवेलेबल हैं, आप उनको ऑब्जर्व करके उनकी हेल्प को एक्सप्लॉइट करके यू कैन ब्रेक ए सिफर. ओके सो दीज आर द नाउ मोर स्मार्ट मेथड्स. एक्चुअली मैंने कहा ना, क्लासिकल के एरा में द क्रिप्टोग्राफी वाज नॉट ए साइंस. सो देयर वाज नो set of theories or mechanism to that were available that can be employed to break the ciphers that was looking very strong, but they were actually not strong. ठीक है, उस समय क्योंकि वो थ्योरीज लोग नहीं जानते थे कि स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज और ये. सो क्रिप्ट एनालिसिस जो है ना, दैट इज अगेन ए ब्रांच रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, वेयर योर गोल इज टू ब्रेक ए सिफर यूजिंग its mathematical and statistical properties or pattern, you can say. So cryptanalysis is a separate branch. Okay, we will not talk about that later, sorry, in this actually class. But cryptanalytic methods are there, so we will see some of the cryptanalytic methods okay in after some time. Okay, सो ये जो मेथड्स अभी हमने डिस्कस किए, वी विल टॉक अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ दीज मेथड्स एज वेल. ओके, कैसे इनको ब्रेक करेंगे, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे. नाउ आते हैं नेक्स्ट सिफर पर, दैट वाज अफिन सिफर. सो इन केस ऑफ अफिन सिफर, अगेन योर दीज सेट्स प्लेन टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट Z26 पर ही डिफाइंड है. एंड नाउ वी आर यूजिंग ए की लाइक दैट. के इज योर की इज ए टपल. एक्चुअली योर की इज ए tuple A and B, such that A is also coming from Z26 and B is also coming from Z26. ठीक है, आपके बुक में ये नोटेशन होता है, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ. सो दैट की स्पेस जो है आपका, वो आपका एक टपल है. ठीक है, ए बी इस तरीके से, दिस वन. ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ वी आर डूइंग encryption and how we are doing decryption. So in order to do encryption, what we do, let's suppose X is the letter or message that you want to encrypt. So and K equal to AB is the key that you have selected. Okay, so I am assuming that AB स्मॉल k है, स्मॉल k इक्वल टू AB इज द की एंड X इज द मैसेज जिसे आपको इंक्रिप्ट करना है. ओके, E इज द इंक्रिप्शन मेथड, दैट इज अफिन सिफर. सो इन केस ऑफ अफिन सिफर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन की एंड प्लेन टेक्स्ट एंड सिफर टेक्स्ट, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन. दैट मीन्स EX इक्वल टू AX प्लस B. मतलब आपको क्या करना है, X को A से मल्टीप्लाई करना है अंडर मॉडुलो 26. ध्यान रखना, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज नॉट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, ये मॉडुलो 26 मल्टीप्लिकेशन है.
मॉडुलो 26 मल्टीप्लिकेशन मीन्स ए एंड एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका 26 से मॉड ले लेंगे, एंड देन जो आंसर रिमाइंडर विल बी द आंसर फाइनली। ओके, सो आपने क्या किया, ए और एक्स को मल्टीप्लाई किया प्लस बी। ओके, अब इन दोनों का सम किया एंड सम के बाद आपने फिर से मॉड ले लिया। सो एवरीथिंग विल बी इन दिस बिटवीन दिस सेट Z26. So this is how we are doing encryption. Now let's see how decryption will be done. So obviously you know that this is the equation. Let me write this equation like that, y equal to ax plus b. Okay, now यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट लगाएंगे मॉड 26, क्योंकि मॉडुलस में कॉन्ग्रुएंट लगाया जाता है। ये इक्वालिटी वाली चीज़ नहीं होती है, मॉडुलस में कॉन्ग्रुएंट होता है। और दो नंबर को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं अगर हम दोनों को मॉडुलस से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आता है। So all those numbers that give the same remainder using modulus are called congruent. ठीक है, जैसे mod 5 अगर आप यूज कर रहे हैं ऑपरेशन, तो 5, 10, 15 एंड सो ऑन, ये सब नंबर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ध्यान रखना। सो आई कैन राइट 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू लेट्स से 25 mod 5। तो इसका मतलब कभी ये मत निकालना कि 5 और 25 बराबर हैं। ओके, मतलब है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का कि दे विल गिव सेम रिमाइंडर व्हेन यू यूज मॉडुलस ओवर दीज नंबर्स। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर डूइंग इनक्रिप्शन। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो भी आउटपुट आएगा दैट इज योर इनक्रिप्शन ऑफ एक्स, लेट्स से दैट इज वाई। सो वाई इज योर सिफर टेक्स्ट इन दैट केस। ओके, now let's see how we will do decryption. So decryption आप देख सकते हैं, if you focus on this equation y equal to ax plus b, ठीक है, ये जो मॉडुलस वाली इक्वेशन है नॉर्मल आपने जो अलजेब्रा किया वैसे ही काम करती हैं काफ़ी कुछ चीज़ें। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई डिक्रिप्शन में मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। सो दैट मीन्स आई नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x। सो व्हाट आई विल डू, ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस बी, है ना, कॉन्ग्रुएंट लगाए रखना है, मॉड 26 कर देना है इधर। ओके, एंड नाउ ओबियसली नाउ आई वांट x, सो मुझे यहाँ से a को हटाना पड़ेगा, और a को हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए, a का इन्वर्स चाहिए। एक्चुअली आपने नॉर्मल अलजेब्रा किया हो तो आप उसमें क्या करते थे, a को नीचे ले जाते थे, है ना, या नीचे ले जाने का मतलब सीधा इन्वर्स से मल्टीप्लाई, दोनों साइड इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, this one, that means you will get x equal to a inverse y minus b mod 26, है ना, congruent लगा दीजिए। So this is the equation. So now in order to decryption you need to use this equation. You can see that the same equation is written, a inverse y minus b mod 26. So this is how using this equation you can do decryption. Now there is one condition here that is required, that you should have इनवर्स ऑफ ए, और ये कौन सा इनवर्स है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज हो रहा है। दैट मीन्स यू शुड हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। अगर मॉड 26 में ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, यू कैन नॉट डू डिक्रिप्शन। ओके, सो जनरली जब ए और 26 अगर कोप्राइम है, मॉडुलस, ये जो इनवर्स का एग्जिस्टेंस कब होता है, अभी मैं थोड़ी देर फॉर द टाइमिंग आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा, एंड वी विल सी दैट थिंग इन कॉन्सेप्चुअल वे। आपको मैं बताऊंगा कि क्यों इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इफ GCD ऑफ a, 26 इज इक्वल टू 1, then you will have then a inverse will exist, ठीक है, अदरवाइज a inverse will not exist। और जब a inverse exist नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आप इस इक्वेशन को का यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, you will get many solutions। और जब एक इक्वेशन का मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं तो वो इक्वेशन हमारे काम की नहीं है, ठीक है, वी कैन नॉट यूज। क्योंकि अगर आपको एक सिफर टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग कई सारे प्लेन टेक्स्ट लेटर मिलेंगे, देन देयर इज दैट सिफर इज ऑफ नो यूज। आपको सिफर टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग एक ही प्लेन टेक्स्ट मिलना चाहिए। सो ये कब पॉसिबल होगा, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स Z26 में तभी एग्जिस्ट करता है जब जो नंबर ए है और वो 26 आपस में कोप्राइम हो।
को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो, या उसे जीसीडी कहते हैं, दोनों का जीसीडी 1 हो। ठीक है, आई एम राइटिंग जीसीडी, जी फॉर जीसीडी। तो जीसीडी ऑफ ए और 26 इज इक्वल टू 1, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज हाउ द अफीन शिफर वर्क्स। नाउ दिस शिफर इज कॉल्ड अफीन शिफर बिकॉज ये जो इक्वेशंस दी है ना, ए एक्स प्लस वी इक्वल टू वाई, so these kind of equations are known as affine equations. Okay, these equations are known as affine equations. That's why this cipher is known as affine cipher. So mathematically or some other way this method looks strong, but actually this method is also not strong. Let's talk about why this method is not strong. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द की स्पेस, क्योंकि हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले एग्जॉस्टिव सर्च से प्रूव करना है कि आपका मेथड एग्जॉस्टिव सर्च अटैक जो है उसके अगेंस्ट रेसिलियंट है या नहीं है। सो इन ऑर्डर टू चेक दैट यू नीड टू चेक द नंबर ऑफ कीज। ओके, सो नंबर ऑफ कीज कौन कौन सी होंगी, आपको पेयर लेना है, आपकी जो की है वो है ए कॉमा बी, एंड आपको मालूम है सारे ए की वैल्यू आप कहाँ से लेंगे, आइदर 0 1 2 एंड सो ऑन 25 इस सेट से आनी है, जेड 26 से, ए और बी दोनों 26 से आनी है। तो बी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं 26, ए की कितनी पॉसिबल वैल्यू है 26, तो आप मान सकते हैं कि के की नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी 26 इंटू 26, दैट मीन्स 26 स्क्वायर। कितना नंबर आएगा ये 26 के स्क्वायर, कैन यू टेल मी? 676, गुड। सो 676, आप देख रहे हैं की स्पेस बहुत छोटा है, बट स्टिल की स्पेस अभी भी इतना बड़ा नहीं है, 676 नहीं है, इसमें भी और कम है। लेट मी टेल यू व्हाई इट इज सो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ए का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो मॉड 26 और ए का जीसीडी 1 हो, दैट मीन्स 26 और जो ए है वो को प्राइम हो। ठीक है, को प्राइम की डेफिनेशन है, एक मैथमेटिक्स में डेफिनेशन है, को प्राइम, टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर जीसीडी इज 1, और सिंपली ये कहिए उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। सो इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन बोथ ऑफ देम, तब हम दोनों को बोलते हैं को प्राइम, ये आपस में को प्राइम है। जैसे 5 और 16 दे आर को प्राइम, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 6 और 16 को प्राइम नहीं है। क्यों? 6 में और 16 में दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 2। ओके, सो इनवर्स जो ना उन्हीं नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करता है जो वही ए के लिए एग्जिस्ट करता है जो 26 के को प्राइम हो, और 26 के को प्राइम कौन कौन होंगे 1 then 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, सो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, कितने को प्राइम है वो कैसे पता लगाना है। सो उसके लिए फॉर्मूला है यूलर टोसेंट फंक्शन बोलते हैं 526, तो इसमें आप इसके फैक्टर कर दीजिए प्राइम फैक्टर। सो 526 कैन बी लाइक 513 एंड 52, और ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर के लिए 5q की वैल्यू होगी 13 है तो एक कम 12 होगी, p -1 होता है, p प्राइम है तो 5p इक्वल टू होगा p -1 इंटू ये हो जाएगा 1, सो एक्चुअली 12। सो इफेक्टिवली 12 नंबर ऐसे हैं जो 26 के को प्राइम है, 0 से 25 के बीच में ओनली 12 नंबर्स आर देयर दैट आर को प्राइम टू 26। सो दैट मीन्स ए की केवल 12 पॉसिबल वैल्यूज हैं, मैंने कुछ आपको बताई थी। सो ए की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है 12 पॉसिबल वैल्यूज फॉर ए। ठीक है, सो नंबर ऑफ कीज निकालना है, सो 12 वैल्यूज फॉर ए पॉसिबल हैं इनटू बी की 26 पॉसिबिलिटीज हैं, बी के लिए सारी वैल्यू यूज कर सकते हैं, बी में कोई इशू नहीं है, बी की वैल्यू कुछ भी हो। सो टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी आ गई, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 26 इंटू 12, सो इट विल कम 312। सो नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ वेरी स्मॉल की स्पेस। सो आपको इसमें कोई स्मार्ट अटैक लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जॉस्टिव की सर्च अटैक लगा दीजिए। 312 कीज हैं ऑन एवरेज, आपको इसका हाफ मतलब
156 की ट्राई करनी है एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल. ओके, सो दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट सिक्योर. वी विल ऑल्सो सी सम अदर अटैक, क्योंकि ध्यान रखना ये मेथड स्ट्रक्चरली जो है मैथमेटिकली भी स्ट्रॉन्ग नहीं है. इसकी जो मैथमेटिकल हम फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हैं दे आर ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर क्रिप्टोग्राफिक पर्पज. ओके, सो वी विल ऑल्सो सी दिस वन मोर अटैक दैट यूजेज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस अटैक, जिसमें आपको सारी की ट्राई करने की जरूरत नहीं है. सो अफीन सिफर is also not secure. We will talk about attacks on this ciphers later. Okay, now let's stop here. If you have any query you can ask. Hill cipher and next cipher we will talk about that later. कहाँ इसमें ये है ना y x इक्वल टू है ना, ये dy का मतलब डिक्रिप्शन ऑफ y है. ये x इक्वल टू dy का मतलब है, dy मीन्स डिक्रिप्शन ऑफ y, और डिक्रिप्शन ऑफ y कौन होगा? x. ओके, dy मीन्स डिक्रिप्शन ऑफ y x. क्योंकि आप ex करते हैं ना इनक्रिप्शन में, हम कई बार ऐसे लिखते हैं ex, जब आप e मतलब इनक्रिप्शन, x का जब इनक्रिप्शन करोगे तो यू विल गेट सिफर टेक्स्ट. तो लेट्स से हम सिफर टेक्स्ट को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ex इक्वल टू y. तो अब डिक्रिप्शन करोगे तो ऑब्वियसली डिक्रिप्शन में हम क्या करेंगे? लेट्स से d इज फॉर डिक्रिप्शन, d इज रिप्रेजेंटिंग डिक्रिप्शन एल्गोरिथम. इट इज एक्चुअली फंक्शन. तो फंक्शन को डिक्रिप्शन के टाइम पर आर्गूमेंट क्या देना है आपको इनपुट में? y ऑब्वियसली. आउटपुट में आपको क्या मिलना चाहिए? x. सो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है dy, x की जगह पर dy इक्वल टू x. ओके, दैट्स वाई दिस रीड. हाँ, ax प्लस b को सम करने के बाद, हाँ निकाल सकते हैं, सम करने के बाद निकाल सकते हैं. वी विल सी दैट प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस. अगर आपने वो मेरा वीडियो मैंने आपको शेयर किया था, अगर आप उसके थ्रू गए हो तो mod 26 एक्चुअली आप डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो आप ax को मॉड कर लीजिए, फिर b का मॉड कर लीजिए, या आप दोनों को पहले ax निकाल के उसमें b ऐड कर लीजिए, फिर मॉड ले लीजिए. देयर इज़ नो इशू, यू विल गेट द सेम आंसर. ओके, लेकिन होता क्या है कि हम जो आप जो कह रहे हो ना, पहले ax का मॉड करना फ़ायदेमंद इसलिए है सो दैट आप ax को इमीडिएटली जब मॉड कर लेंगे, सो इफ़ यू सपोज यू आर वर्किंग विद लार्ज नंबर्स, सो आप ax में b और ऐड कर लेंगे. अज्यूम करिए b इज ऑल्सो लार्ज, इस केस में तो b स्मॉल है, but assume करिए in some other encryption example, in some other encryption mechanism where x can be very large, a can also be large and b can also be large. So ax large आप ले रहे हैं, x is also large number, a is also large number, so a into x will also very large. समटाइम्स आपने देखा होगा एक 4 डिजिट के नंबर और एक 3 डिजिट को नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग मिनिमम 8 और समथिंग उससे ज़्यादा डिजिट्स आ जाते हैं, है ना. 6-7 डिजिट्स का लार्ज, वेरी लार्ज नंबर जो है जनरेट हो जाता है. सो हम जनरली फिर क्या करते हैं मॉडुलस में, वी विल अप्लाई मॉडुलस ऑन पीसेस, ax पर मॉड लगा लेंगे सो दैट इट विल बिकम स्मॉल नंबर, इसका आंसर. और फिर एक स्मॉल नंबर को आपको b में ऐड करना है, तो थोड़ा सा और b से बड़ा लार्ज नंबर बनेगा, तो आप b फिर कर दीजिए. सो दैट ऐसा करने से क्या होता है, हमें लार्ज नंबर्स के साथ काम करने में बड़ी सहूलियत होती है. सो बोथ आर द सेम थिंग. आप चाहे ax को पहले मॉड ले लीजिए फिर उसमें b ऐड करिए, या पहले ax और b को ऐड कर लीजिए फिर फाइनल का मॉड लीजिए, एक ही बात है. यू विल गेट द सेम आंसर. ओके, एनीथिंग एल्स? किसके केस में? अफीन सिफर का एग्जाम्पल. यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ए एंड एक्स. थोड़ा सा मैथ करना पड़ेगा आपको. आई हैव गिवन यू द इक्वेशंस, यू कैन वर्क ऑन दीज इक्वेशंस. सो लेट्स से एक्स आपको इनक्रिप्ट करना है. अगेन ध्यान रखना, एक्स विल बी ए नंबर, एक्स विल दैट मीन्स 0 to 25 के बीच का कोई नंबर है. सो एक्स इज रिप्रेजेंटिंग सम लेटर, इट मे बी एनीथिंग. सो लेट्स से आपको एक लेटर लेट्स से द, इसको इनक्रिप्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, द
मैं टी के करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर है, व्हाट विल बी द नंबर करस्पॉन्डिंग टू टी। अगर आप इसे नंबर्स में कन्वर्ट करें तो आई हैव द नंबर्स, लेट मी टेल यू। टी दैट मीन्स 19। सो आपका एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ? 19। तो आप इनक्रिप्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 19 है। अब आपने ए अगर मान लीजिए 3 एंड लेट्स से 8 लिया है, तो हाउ यू विल इनक्रिप्ट 19? 3 इंटू 19, आपका ये हो गया ए और ये हो गया एक्स, 19 प्लस 8 और मॉड 26। ओके, सॉल्व कर लीजिए, कितना आया? कितना है? 39। 19 इंटू 3, 57 प्लस अच्छा, आप 57 अगर आया है तो एक तो है कि आप पहले 57 ऐसे करते थे प्लस 8 मॉड 26। हालांकि यहाँ तो छोटे नंबर हैं, लेकिन मान लीजिए इसमें फ़ायदा क्या होगा आपको, जैसे मॉड 26 पहले आप इसका मॉड ले लीजिए, 56 का मॉड करोगे तो आप कितना आएगा? 5 प्लस 8। आप देख रहे हो आप स्मॉल नंबर्स होगा एकदम से, मॉड 26। सो यू विल गेट 5 और 8 13 मॉड 26। सो 13 के करस्पॉन्डिंग जो भी लेटर है दैट इज योर सिफर टेक्स्ट। सो लेट मी सी 13 n. So n is the encryption of t in this example, n. सिमिलरली h के भी निकाल लेंगे आप, e के लिए भी निकाल लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे 57 का इंक्रिप्शन यहीं कर लिया था, सॉरी मॉड ले लिया था। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, 57 प्लस 8 कितना हो गया? 65 और मॉड 26। तो आप देख रहे हैं अभी आपको और लार्जर, जब आप इसको बीच में सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा से और लार्जर नंबर्स के साथ काम करना पड़ रहा है। यहाँ मेरे पास जो नंबर थे, एक 57 था, एक 8 था, जो कि दोनों ही नंबर इससे छोटे हैं। ठीक है, सो छोटे नंबर्स के साथ जब वर्क कर रहे हो तो आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। अज्यूम करिए जब हम क्रिप्टोग्राफी करते हैं तब हो सकता है कि आपकी जो नंबर्स हैं वो एवरी नंबर इज ऑफ एटलीस्ट 10 डिजिट साइज। तो अब एज्यूम करिए जब 10 डिजिट से मिनिमम साइज़ के नंबर्स के साथ, दैट मीन्स मिनिमम थाउजेंड्स या लाख्स में जो नंबर्स हैं उनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो कितने लार्ज नंबर्स जनरेट होंगे। सो आपके मेथड को एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इमीडिएटली मॉड ले लेते हैं। सो उससे क्या होता है, आपके नंबर्स स्मॉल बने रहते हैं, और जब छोटे नंबर्स रहते हैं तो ऑब्वियसली कंप्यूटेशन विल बिकम फास्ट, सो योर क्रिप्टोग्राफिक मेथड विल बी वर्क फास्टर। सो दैट्स वाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड। हम जनरली इंडिविजुअली मॉड पहले से लगा करके नंबर को छोटा कर लेते हैं, सो दैट वी विल वर्क विद स्मॉल इंटीजर्स। ओके, एनीथिंग एल्स? No?